Hello my friends, welcome in your science class. We are enjoying science. I am Kapsemis here to make your science easy. In our previous videos, we have seen the natural resources. Air, water and land are our natural resources. We've seen about layers of earth, hydrosphere, lithosphere and atmosphere in our last video. Today we will learn about air. Air is one of the natural resource. It makes our life easy and it fulfill our basic need. We need air to breathe in. Without air we cannot live. So we will study about first natural resource, that is air. Here you can see one circle and names of some gases: oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide and other constituents, means other gases in the air. This is the proportion of various gases in the air. Here you can see nitrogen. Nitrogen, the large area of the atmosphere is covered with nitrogen gas, and that is 78%. Yes, here you can see 21% of oxygen. 21% of oxygen gas is covered in our atmosphere. Then about argon, this is one gas in the air and its percentage in air is 0.9%. Carbon dioxide, we know carbon dioxide very well. We give out carbon dioxide in our breathing. Yes, and this carbon dioxide, percentage of carbon dioxide in the air is 0.03% only. Yes, how much? 0.03%. These are main four gases in the atmosphere, which nitrogen, oxygen, argon and carbon dioxide. These are main four gases in our atmosphere. Then have you made the calculation of this? Look here, 78%, then 21%. 78 plus 21, how much? 99%. 99%. Remaining 1%. Here 0.9% and 0.03%. It means 0.93%. Means 0.07% is remaining for making the calculation of 100. Yes, and this 0.07% is the percentage of other remaining gases in the air. Yes, all other gases in air are about 0.07% of the total air. Now we will learn more about this air. The air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases: nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapors and dust particles. What are the contents of air? The contents of air are nitrogen, oxygen, carbon dioxide and 6 inert gases. Which are that 6 inert gases? We will see it later. Then nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapors and dust particles. These are the contents of air.
The troposphere contains about 80% of the total mass of gases in the year. ईयर में जितने भी गैसेस है उसके 80% गैसेस जो है वो ट्रोपोस्फियर में ही है. व्हाट इज दिस ट्रोपोस्फियर? इट इज वन ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. हमने एटमॉस्फेयर के लेयर्स देखे हैं लास्ट वीडियो में. मैंने आपको वो सिखाए है 5 layers of atmosphere: troposphere, stratosphere, exosphere. Yes, and out of all these gases, air is mixture of gas, we know it. एयर में क्या है? ओनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है. और ये जो एयर है कहाँ तक फैली है? पूरे एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उसे उसमें ये कंप्लीट एयर है. और ये टोटल ईयर जो है एटमॉस्फेयर के फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर में ही 80% ईयर है. बची 20% ईयर वो बाकी के 4 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. यस, troposphere contains about 80% of the total mass of gases in the year, while this proportion is about 90% in stratosphere. अब बाकी का जो 20% बचा है उसमें से 90% तो मिलेगा हमें कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फियर में. उस स्ट्रेटोस्फियर में कौन सी गैस है वो भी हम आगे देखने वाले हैं. अब दोनों मिलके कितना हो गया देखो, 80% एंड 19%. एडिशन क्या है इसकी? 99%. द 99% ईयर जो है वो 2 लेयर्स में ही डिवाइडेड हो गई है. कौन से? ट्रोपोस्फियर में और स्ट्रेटोस्फियर में. यस, और बाकी का जो 1% है वो बाकी के 3 लेयर्स में, वहां पे वो बचे वाला 1% ईयर वहां पे है. यस, that we will see next. Further, in the mesosphere, ionosphere and the proportion of mass of gases goes on decreasing. तो ये मेसोस्फीयर में और इनोस्फीयर में बहुत ही कम गैस है. यस, ऑक्सीजन तो है ही नहीं. ऑक्सीजन तो हमें मिलेगा सिर्फ ट्रोपोस्फियर में. ऊपर ऑक्सीजन कम कम होता जाता है. और ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि ईयर भी, टोटल अमाउंट ऑफ ईयर भी कम कम होती जाती है. यस, डिक्रीजिंग लेवल. गैसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फीयर एंड बियॉन्ड. और एक्सोस्फीयर में तो गैस ही नहीं है, ईयर ही नहीं है वहां पे. नो ईयर फाउंड इन एक्सोस्फीयर. यस, you can see that air is a mixture of several gases and is the chief constituent of the Earth's atmosphere. Besides these gases, air also contain water vapor and dust particles. अब देखो एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है ये एयर. लेकिन इसके कंस्टिट्यूएंट क्या है वो भी हमने देखे. कंटेंट्स ऑफ एयर ऊपर हमने देखे हैं, ऊपर के पैराग्राफ में. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. दीज आर कंटेंट्स ऑफ एयर. लेकिन ये जो वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल है, ये वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल ये गैस नहीं है. यस, ये गैसियस फॉर्म में आते हैं लेकिन ये गैस नहीं है. यस, द अमाउंट ऑफ गैसेस इन द एयर इज greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface. तो ट्रोपोस्फियर के स्टार्टिंग से ये जो ईयर में के गैसेस है ये यहाँ पे ज़्यादा है. और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे और के सरफेस के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये गैसेस डिक्रीज होते हैं. इनका लेवल, इनका अमाउंट डिक्रीज होता है. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमें कम कम ईयर वहां पे मिलेगी. यस, द प्रपोर्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ईयर
and some of their uses are given here. Yes, अभी इस ईयर में कौन कौन से गैसेस है, उनका प्रोपोर्शन क्या है, ये हमने यहाँ पे देखा. यस, अब ये जो गैसेस है, इन गैसेस के यूजेस क्या है वो हम देखेंगे नीचे के पैराग्राफ में. देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है उन्होंने. फर्स्ट, नाइट्रोजन, जो बहुत ही उसका अमाउंट जो है ईयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट है नाइट्रोजन गैस का. ये नाइट्रोजन गैस, ये जो नाइट्रोजन गैस है, इसका क्या क्या हेल्प होती है हमें वो हम देखेंगे. नाइट्रोजन हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स. फर्स्ट यूज क्या है उसका, इट हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स. प्रोटीन्स को बिल्डअप करने में, प्लांट में प्रोटीन मिलता, प्लांट में से हमें प्रोटीन मिलता है. यस, और ये प्रोटीन प्लांट में आने के लिए ये नाइट्रोजन गैस हेल्पफुल होती है. प्लांट्स इस नाइट्रोजन गैस की हेल्प से खुद में प्रोटीन को डेवलप कर सकते हैं, प्रोटीन को ले सकते हैं. यस, और उन प्लांट्स से ही हमें प्रोटीन मिलता है. आई थिंक हमने लास्ट ईयर ये हमने देखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन. याद है आपको, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, प्लांट्स के रूट के पास नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. वहाँ पे उस प्लांट के रूट से, वो प्लांट के रूट्स नाइट्रोजन को अंदर लेते हैं और जिससे प्रोटीन डेवलप होता है. यस, और ये कौन से प्लांट्स में देखा जाता है, कौन से प्लांट्स में ये होता है, तो जो पल्सेस के प्लांट्स है, यस, बीन्स, तूर, मूंग, इसके जो प्लांट्स है, इसके रूट के पास ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसकी वजह से वो उससे जो हमें सीड्स मिलते हैं उसमें प्रोटीन होता है जो हम यूज करते हैं ईटिंग के लिए. द नेक्स्ट यूज of nitrogen is it is useful in the production of ammonia and in airtight packaging of foodstuff. ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अमोनिया मेक करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ एयरटाइट पैकेजिंग. एयरटाइट पैकेजिंग मालूम है आपको, एयरटाइट फूड कंटेंट मिलता है. जो बाहर से आप फूड लेते हैं, रेडीमेड फूड, वो ईयर टाइट कंटेनर में होता है. फॉर एग्जाम्पल अपना पिकल लो, अचार, अचार के जो जार्स आते हैं ईयर टाइट होते हैं, उसमें उस जार को ईयर टाइट बनाने वाला होता है. यस, या फिर आप ले सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स. कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं आप, उसका जो ढक्कन है इजीली ओपन नहीं होता है. यस, उसे ओपनर से खोलना पड़ता है और वो खोलने के बाद वहाँ पे बहुत प्रेशर निकलता है, प्रेशर से वो खोलना पड़ता है ना. ये क्यों होता है, ये एयर टाइट जार्स है और ये एयर टाइट पैकेजिंग करने के लिए ये नाइट्रोजन गैस हमें हेल्पफुल है. देन नेक्स्ट वाला हम देखेंगे ऑक्सीजन गैस. ये ऑक्सीजन गैस का यूज क्या है, इट इज नेसेसरी फॉर रिस्पायरेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स के लिए ये ऑक्सीजन नेसेसरी है. अब ऑल लिविंग थिंग्स बोले तो ऑल आएंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों को भी रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन लगता है. प्लांट को भी रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन लगता है. यस, एंड नेक्स्ट यूज इज कंबशन. फॉर कंबशन, ऑक्सीजन कंबशन, कंबशन बोले तो जलना. हमने देखा है ये एक्सपेरिमेंट अपने साइंस एग्जीबिशन में, फायर को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है. यस, वो कैंडल एंड ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट हमने देखा है. कैंडल के ऊपर ग्लास अगर रख दिया तो वो कैंडल कुछ देर में बंद हो जाती है, बुझ जाती है. इसका कंक्लूजन क्या निकाला था हमने, फायर नीड ऑक्सीजन टू बर्न, और इसी को बोलते हैं कंबशन. तो कंबशन में ऑक्सीजन
हेल्पफुल होता है। देन नेक्स्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? प्लांट यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। प्लांट्स फूड को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस से। उनके ग्रीन लीव्स जो है वो फूड मेक करते हैं, और ये फूड मेकिंग के लिए, इस फोटोसिंथेसिस के लिए उस प्लांट को नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ही वो अपना फूड मेक करते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। और एक यूज है कार्बन डाइऑक्साइड का, देखो, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स मीन्स आग बुझाने वाले। यस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रॉपर्टीज एक दूसरे से एकदम से अपोजिट है। ऑक्सीजन हेल्प करता है बर्निंग में, तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर को बुझाता है। यस, तो फायर को बुझाने के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स मिलते हैं, देखो हॉस्पिटल्स में आपको ये देखने को मिलेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये हेल्प करते हैं फायर को बुझाने के लिए। देन नेक्स्ट गैस है अर्गॉन। अर्गॉन हमने देखा जिसका परसेंटेज है ये 0.9%। ईयर में 0.9% अर्गॉन होता है। यस, अब इस अर्गॉन का यूज क्या है, देखो, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, जो लाइट के लिए हम यूज करते हैं, उन बल्ब में ये अर्गॉन गैस भरे वाला होता है। यस, देन नेक्स्ट गैस इज हेलियम। नेक्स्ट गैस इज हेलियम। दिस हेलियम, अब ऊपर के जो प्रोपोर्शन का चार्ट हमने देखा है उसमें ये हेलियम नहीं, तो फिर ये हेलियम कहाँ पे होगा? अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ईयर। जो ईयर के अदर गैसेस है उन गैसेस में ये हीलियम गैस आएगा। यस, तो ये हेलियम जो है इट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड also फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। ये हेलियम गैस जो है, ये हेलियम गैस टेम्परेचर को लो करने के लिए यूजफुल होता है। इट इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप। और इसका यूज कहाँ पे होता है इस हेलियम का? ये लिफ्ट जो होते हैं एयरशिप्स में, एरोप्लेन्स में, उसमें जो लिफ्ट होते हैं, लिफ्ट मालूम है ना आपको, नीचे से ऊपर जाने के लिए जो यूज किया जाता है वो लिफ्ट जनरेट करने के लिए ये हेलियम गैस यूज होता है। देन नेक्स्ट गैस इज नियॉन। अब देखो ऊपर के प्रोपोर्शन में नियॉन भी नहीं दिया है, बोले तो ये नियॉन होगा कहाँ पे? अदर गैसेस में, अदर कंस्टिट्यूएंट्स में। यस, ये अदर कंस्टिट्यूएंट का जो 0.7% दिया है इसमें ही ये हेलियम और नियॉन आएगा। तो नियॉन का यूज क्या है, देखो, नियॉन इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। ये नियॉन गैस जो है वो डेकोरेटिव लाइट्स में, डेकोरेशन के लिए जो लाइट लगाए जाते हैं छोटे छोटे वाले कलरफुल लाइट्स, लाइटिंग लगाते हैं हम दिवाली में या फिर दशहरे में, होम को डेकोरेट करने के लिए जो लाइटिंग लगाई जाती है, उस लाइटिंग में ये नियॉन गैस यूज होता है। एज वेल एज स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट पे जो लाइट्स होते हैं, रोड पे लाइट लगाए जाते हैं, पोल्स होते हैं उसके ऊपर लाइट लगाया जाता है रोड पे, है ना, तो उसमें भी ये नियॉन गैस यूज होता है। देन नेक्स्ट इज क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन गैस इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में ये क्रिप्टॉन गैस यूज होता है। देन जेनॉन गैस जो है वो फ्लैश फोटोग्राफी, फोटोज निकालते हैं, फ्लैश गिरता है वो फोटो निकालते समय,
वहाँ पे इस xenon गैस का यूज होता है। तो ये है सम यूजेस ऑफ सम गैसेस इन द ईयर। तो इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन आस्क किए हैं आपको, वो क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। यहाँ पे और एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, देखो, ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ is sustained due to the balance between various gases and other constituents of air। अर्थ पे जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग थिंग्स अर्थ पे है, मौजूद है, वो किसकी वजह से मौजूद है, किसकी वजह से सस्टेन्ड है, तो they are sustained due to the balance between various gases and other constituents of air। क्वेश्चन आ सकता है आपको, what is responsible to sustain the living world on the earth? Yes, तो आंसर क्या लिख सकते हैं आप, the living world on the earth is sustained due to the balance between various gases and other constituents of air। Yes, the atmosphere is very important filter। ये atmosphere क्या है, it is one type of filter। क्या फिल्टर करता है ये एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीन्स 5 लेयर्स है, उसमें देखे हमने कौन कौन से, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, इनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर से एटमॉस्फेयर बना है और ये एक टाइप का फिल्टर है। इट अलाउज द लाइट एंड हीट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ। और इस फिल्टर में से, इस एटमॉस्फेयर के फिल्टर में से सन की लाइट अर्थ के ऊपर, अर्थ पे एंटर होती है। जो सनलाइट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, उस सनलाइट की वजह से ही लाइफ, अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट है। उस सनलाइट की वजह से ही प्लांट्स अपना फूड मेक करते हैं और हमें फूड मिलता है। यस, लेकिन ये जो सनलाइट है उसमें और भी कुछ हार्मफुल है। यस, देखेंगे हम आगे। बट इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। इट इज द एटमॉस्फेयर दैट फॉग, क्लाउड, स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस्ड। यस, तो ये सनलाइट में, सनलाइट से हमें लाइफ तो मिलती है, लेकिन इस सनलाइट में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, हार्मफुल रेज भी होते हैं, जिसे यहाँ पे दिया नहीं उन्होंने, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। देखो, अल्ट्रा वायलेट रेज उन्हें बोला जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वो अल्ट्रा वायलेट रेज अगर अपने बॉडी पे फॉल हो जाए तो हमें स्किन बर्न होता है, अपनी स्किन जल जाती है। फायर का झटका जैसे हमें लगता है, उससे भी ज़्यादा जलन उस अल्ट्रा वायलेट रेज से होती है। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज हम तक नहीं पहुंचते, क्यों, एटमॉस्फेयर के लेयर की वजह से। इसलिए इस एटमॉस्फेयर को फिल्टर बोला गया है। क्या फिल्टर करते हैं वो, सन के लाइट को फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, 3 पिक्चर्स है यहाँ पे। क्या दिख रहा है इन पिक्चर्स में, यस, धुआं ही धुआं निकल रहा है, देखो। और एक ही जगह से निकल रहा है, नो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। इस फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है, देखो, 2 पोल्स है, ये तो पोल दिख रहा है, ये पीछे वाला जो है, ये उस पोल में से वो स्मोक निकल रहा है। मीन्स क्या हो सकता है ये है फैक्ट्रीज के ऊपर के चिमनीज। यस, फैक्ट्री के ऊपर ऐसे पाइप लगाए वाले होते हैं, इन्हें चिमनीज बोला जाता है। और फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन चलता है, उसमें जो भी बर्निंग होती है, उसका गैस यहाँ से बाहर निकलता है, दैट इज स्मोक। ये सेकंड पिक्चर में क्या देखने को मिलता है, व्हीकल्स है और उन व्हीकल में से स्मोक निकल रहा है। और ये थर्ड पिक्चर में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, आई थिंक फॉरेस्ट है यहाँ पे, है ना, और उस फॉरेस्ट को, वो फॉरेस्ट बर्न हो रहा है। यस, फॉरेस्ट फायर, ये जो
और देखा था हमने लास्ट ईयर फॉरेस्ट फायर्स। यस, इन फॉरेस्ट फायर में से भी स्मोक निकलता है और इन स्मोक की वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन। ऑल द अबाउ पिक्चर्स शो लार्ज स्केल इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। कौन कौन से एजेंसीज दिए हैं, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड फॉरेस्ट फायर। यस, this smoke directly mixes with atmosphere, disturbing the balance between constituents of air. अब ये ईयर का जो प्रोपोर्शन हमने देखा है, यस, लास्ट पेज पे ये जो ईयर का प्रोपोर्शन हमने देखा है, यस, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये जो हमने देखा है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है इस स्मोक की वजह से। स्मोक में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, किसी स्मोक में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, किसी में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, किसी में सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये पूरा इस एयर में मिक्स हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। यस, और इसकी वजह से ये जो बैलेंस है, ये जो नेचुरल बैलेंस है गैसेस का, ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। This is called air pollution. Now, what is air pollution? The disturbance in the balance between constituent of air due to smoke. What is air pollution? The disturbance in the balance between the constituent of air due to smoke. This is called air pollution. Harmful gases are given out through combustion of fuels in vehicles and in big industries, and also through incomplete combustion of fuels like wood and coal. As a result, air pollution increases day by day. अब एयर पोल्यूशन के कॉजेस क्या है, कहाँ से होता है ये एयर पोल्यूशन? तो कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर vehicles, yes, fuels in combustion of fuels in vehicle. First cause क्या है, combustion of fuels in vehicle. Then second cause, big industries. Then third cause, incomplete combustion of fuels like wood and coal. 3 causes है देखो एयर पोल्यूशन के, कौन कौन से? फर्स्ट है combustion of fuels in vehicles, सेकंड है बिग इंडस्ट्रीज, एंड थर्ड है incomplete combustion of fuels like wood and coal. These are the 3 causes of air pollution, and hence the air pollution is increasing day by day. हम देख रहे हैं ये combustion हर रोज होता है, व्हीकल्स में से स्मोक निकलता रहता है, इंडस्ट्रीज में से स्मोक निकलता रहता है, और इनकी वजह से एयर पोल्यूटेड होती जा रही है। यहाँ पे हम देखते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज इन एयर थ्रू कंबशन। कंबशन में कौन से वाले गैसेस एयर में मिक्स होते हैं? देयर आर 5 मेन गैसेस दैट आर वेरी हार्मफुल. विच आर दे? फर्स्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड, fourth, sulfur dioxide, and fifth one is soot. Yes, which are the 5 harmful substances released in air through combustion of fuels? That are nitrogen dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, and soot. Here we see the information about ozone layer. क्या होता है ये ओजोन लेयर? इट इज द प्रोटेक्टिव शेल. प्रोटेक्टिव शेल बोले तो बचाने वाला शेल, बचाने वाली ढाल जिसे बोलते हैं हम. तलवार और ढाल मालूम है ना, लड़ाई में यूज किए जाते हैं. दैट इज प्रोटेक्टिव शेल. क्यों बोला जाता है इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव शेल? देखेंगे
there is a layer of ozone gas in the lower part of the stratosphere. अब ये स्ट्रेटोस्फियर में ये ओजोन गैस है, हमने देखा है लास्ट पेज पे, स्ट्रेटोस्फियर में गैसेस का परसेंटेज क्या है, 19%, है ना। और ये 19% कौन सा गैस है वहां पे, तो ओजोन का लेयर है, ओजोन गैस वहां पे फैला हुआ है, और उस ओजोन गैस को प्रोटेक्टिव शेल बोला जाता है। ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। ये डायरेक्टली हमें यूजफुल है क्या, नहीं। जैसे ऑक्सीजन हम डायरेक्टली लेते हैं रिस्पायरेशन में, ब्रीदिंग में, वैसे ये ओजोन लेयर हमें डायरेक्टली यूजफुल है नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो, येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स टू हैव दिस लेयर ऑफ ओजोन एट हाई अल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ। द अल्ट्रावायलेट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, लिसन करो यहाँ पे, द अल्ट्रावायलेट rays coming from the sun are very harmful for living things. The ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things, and the ozone gas absorb these ultraviolet rays. अभी जो मैंने आपको बताया था अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही डेंजरस होते हैं, तो इन अल्ट्रावायलेट रेज को ये ओजोन गैस एब्जॉर्ब कर लेता है, फिल्टर करता है, और वहीं पे वो अल्ट्रावायलेट रेज रुक जाते हैं, हम तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसीलिए ये ओजोन लेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, एज ए रिजल्ट लाइफ ऑन द अर्थ इज प्रोटेक्टेड। द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड if chemical gases like carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbons used in air conditioners and refrigerators mix with air। अब ये जो ओजोन का लेयर है, ये लेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, किसकी वजह से, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। और कहाँ से आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये आता है एसी, एयर कंडीशनर, एसी और रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज। एसी और फ्रिज में से ये दो गैस निकलते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगा तो हम सन के लाइट को बियर भी नहीं कर सकेंगे, ये जो अर्थ है अपनी, ये अर्थ जलने लगेगी। यस, सो हमें ये जो दो गैसेस है इनको बहुत ही कम यूज़ करना है। इनको कम यूज़ करना है मतलब क्या, एसी और फ्रिज बहुत ही कम यूज़ करना है, एसी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, और फ्रिज को ज़्यादा खोलना नहीं है। यस, फ्रिज खोलने की वजह से ये गैस निकलती है और एसी चलाने की वजह से ये गैस निकलती है। तो समझ में आया आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन। यस, और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है आपको, मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, पुणे एंड नागपुर boards are displayed at places of heavy traffic to show the proportion of various constituent of air at that places। ये कुछ मेट्रो सिटीज है, मुंबई, पुणे एंड नागपुर, यहाँ पे ये ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं, ये ऐसे बोर्ड्स लगाए जाते हैं जिससे उस एरिया में कौन सा गैस कितने % है ये हमें पता चलता है। ये बहुत ही हेल्पफुल है।